हेलो एंड वेलकम। आज CSIR नेट लाइफ साइंस का पार्ट ए जनरल पेपर का मार्च 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले, जो स्लॉट 1 में पूछा गया था। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, square root of 0.99 into 0.99 into 0.99 is closest to, so this will be square root of 0.99 cube. Now remove square root, तो ये बनेगा 0.99 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2. So this will be 0.99 का पावर 1.5. अब 1 minus 1.5 into 1 minus 0.99 will be 0.01. So 1.5 into 0.01 will be 0.015. माइनस 1 किया तो मिलेगा 0.985, which is equal to option 3. Means this is 0.99 का क्यूब. तो चेक कर लेते, 0.99 का क्यूब into 0.99. So this will be nearby 0.97. So around 0.97 है, तो almost same है, इसलिए correct answer is option 3. Question number 2. The given figure shows the line fit using least square method between profit in chocolate business and mean temperature. Data for a city. The correlation coefficient obtained from the data is R. Which of the following statement is incorrect? So we have to identify incorrect statement. On the x-axis, T is given degree Celsius and profit in million rupees on y-axis. This is the regression line. Profit equals to 40 minus 86 and R equals to 0.83. Now statement 1. The sum of squared differences between observed and estimated value of profit is minimum. So this is correct statement because this is the definition of least square method. About 69% of variation in profit is explained by variation in temperature. So R square equals to 0.83 का square. So 0.83 का square 0.69, which is around 69%. So statement 2 is also correct. Next, at 30 degrees Celsius, estimated profit is 34 million rupees. तो ये जो फॉर्मूला है प्रॉफिट का, उस फॉर्मूला में टी को सब्सटीट्यूट करते हैं. 4t means 4 multiplied by 30 minus 86. So 4 into 30, 120 minus 86 equals to 34. So correct है. 34 million rupees is correct. Statement 3 is also correct. Data point 32, 80 is anomalous, means abnormal or deviating from others. Therefore must be discarded. तो 32, 80 वाला कौन सा पार्ट है? ये 32 and 80. So this should be discarded. हमें पूछा है. तो ये रिग्रेशन लाइन से थोड़ा स्लाइटली अपवर्ड है, ऊपर है. ये थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, पर उतना ज्यादा नहीं है कि हम उसे डिस्कार्ड कर दे. क्लियर? ये रेंज में नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसे डिस्कार्ड कर दे. ये स्लाइटली अबाउ रिग्रेशन लाइन है, तो हम इसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते. तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Choose the option to fill in the blanks that will make the following statement logically correct. Counting with precision the number of occurrences of the letter I in this sentence yields dash 7, 8, 9 और 10. तो हमें पूछा है कि ये स्टेटमेंट में I लेटर कितनी बार
रिपीट हुआ है, अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ अकरेंस पूछा है. सो हमें आई आइडेंटिफाई करना है. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8. और ये 8 है, पर अगर हम यहाँ पर 8 लिखेंगे तो ये आई काउंट होगा, इसलिए वो टोटल 9 हो जाएगा. और 9 लिखा तो भी आई काउंट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज 9. बिकॉज स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें 9 लिखना होगा, उसमें भी एक आई आता है, तो 8 + 1 9 आई लेटर्स है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4. Masses of several objects were measured on Earth as well as on Moon using the same two-pen balance. The graph of the measurement obtained on the two sides would appear as dash. तो 1, 2, 3, 4 में से ग्राफ कैसा दिखेगा? If mass is measured on the Earth and on the Moon. So similar question जो हमारा स्लॉट 2 था सेम डे, उसमें भी पूछा गया है. तो mass of an object will remain constant irrespective of whether it is measured on the earth or on the moon, क्योंकि mass is independent of gravity, तो it will be straight line from the origin. तो ऑप्शन 3 is correct answer. ये straight line होगा, means equals to 1 होगा. Next, question number 5. Let A export, B rainfall, C harvest, D go down storage. Which one of the following sequence is correct? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा वो पूछा है. सबसे पहले क्या होगा? रेनफॉल, क्योंकि क्रॉप तभी ग्रो करेगा जब भी रेनफॉल होगा. फिर ग्रो होने के बाद सी हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट करने के बाद डी गोडाउन में स्टोरेज करेंगे फॉर सेफ्टी अंटिल इट इज सोल्ड. एंड लास्ट में ए, जैसे ही डिमांड आएगी वैसे हम कस्टमर को सेल करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे. सो करेक्ट सीक्वेंस विल बी बी सी डी ए. फर्स्ट rainfall, फिर crop will grow, then harvesting, then go down storage करके export करेंगे. तो BCDA is correct sequence and option 2 is correct answer. Question number 6. In the fictional country of Patriversia, which of the following province is the odd one out? तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन 4 वर्ड्स में से कौन सा ऑड वन है. तो सिमिलर क्वेश्चन फिर से स्लॉट 2 में भी आया था. तो हमें क्या करना है, ऐसे कभी भी कोई भी कंट्री को फिक्शनल कंट्री बोल के कुछ आइडेंटिफाई करने बोला है कि कौन सा ऑड वन है, तो हमें उसको लेटर्स को रिवर्स करके देखना है. ये वर्ड को रिवर्स करेंगे तो हमें कुछ इन एनिमल के नाम दिखते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट में डॉग है, सेकंड में कैट है, थर्ड में हैन है, और फोर्थ में कोई स्पेसिफिक एनिमल का नाम नहीं है. तो फोर्थ पॉइंट इज करेक्ट आंसर. This word is odd one out. Next, question number 7. Similar question पूछा है. How many 4-digit number can be generated from the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6 such that 1, 2, 3 always appear as a string? No digit appear more than once. तो हमें पूछा है कि 1, 2, 3 कांस्टेंट आना चाहिए, कंटिन्यूस आना चाहिए. तो 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? तो या तो हम 1, 2, 3 को साथ में रखेंगे तो स्टार्टिंग में हमें अलग अलग डिजिट मिलेगा, या फिर एंड में हमें अलग अलग डिजिट मिलेगा. मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमें रिमेनिंग जो वर्ड्स है, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए, तो या तो 4 या 5 या 6 रखने होंगे. तो इनमें से अगर 4, 5, 6 को आगे रखा तो 3 पैर बनते, और अगर पीछे रखा 4, 5, 6 तो और 3 बनेंगे. मीन्स टोटल 3 + 3 6 बनेंगे. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, question number 8. A cube is colored on each face by one of yellow, orange, red, blue, green and pink color. Orange is opposite to yellow. Orange is opposite to yellow. Pink is between orange and yellow. तो pink
ऑरेंज एंड येलो के बीच में, वो इस साइड भी हो सकता है या ऑपोजिट साइड भी हो सकता है। रेड इज अलोंग साइड ऑफ पिंक, तो रेड यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ग्रीन इज बिटवीन रेड एंड ब्लू, मीन्स यहाँ पर अभी ग्रीन और ब्लू को एडजस्ट करना है। यहाँ पर ग्रीन इज बिटवीन रेड एंड ब्लू है, तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर ग्रीन होगा, तो या तो ब्लू यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। ऑरेंज इज एट द टॉप, जो हमने करेक्ट रखा है। व्हाट इज द ऑपोजिट टू ब्लू? व्हाट इज ऑपोजिट टू ब्लू? तो ब्लू के ऑपोजिट में अगर ये ब्लू हम ये माने तो भी रेड आता है, और अगर ये ब्लू मानेंगे तो भी उसके ऑपोजिट में रेड आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। Question number 9. A rectangular sheet of 31.4 by 10 centimeter size is rolled across its length. So 31.4 is circumference and 10 centimeter is the height. To make cylinder without overlap, what will be the approximate volume of the cylinder? तो सबसे पहले तो 2 pi r equals to 31.4. तो r equals to 31.4 divided by 2 pi. तो 31.4 divided by 2 pi की वैल्यू क्या है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6.28 होगी। तो 31.4 डिवाइडेड बाय 6.28 इक्वल्स टू 5। सो r इक्वल्स टू 5 हमें मिला। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 3.14 इंटू आर, आर स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, इंटू हाइट इज 10 सेंटीमीटर। सो 3.14 इंटू 5 स्क्वायर 25 होगा, इंटू 10 करेंगे तो 250, तो 785 क्यूब सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ये क्यूब सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। एरिया होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर होता, पर वॉल्यूम जो 3 डायमेंशन में हम स्पेस ऑक्यूपाइड को कंसिडर करते हैं, इसलिए 785 क्यूब सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. If the word fast, low and tone are written as 3475, 2913 and 611648, but not necessarily in the same order, means fast का 3475 ही होगा, जरूरी नहीं है, it can be anything. Then using the same code, how the word need would be written? तो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं जो कॉमन लेटर है, जैसे फास्ट में एस, स्लो में एस, स्लो में ओ और टोन में ओ, फास्ट में टी, टोन में टी, ये कॉमन है। तो हम वो अरेंज करके देखते हैं कि कॉमन क्या आता है। सो फास्ट, स्लो एंड टोन। फास्ट में लास्ट में जो लेटर है वो 3 आएगा, तो 2913 विल बी द कोड, क्योंकि टोन का टी भी 3 आना चाहिए, तो 1648 डायरेक्ट आ जाएगा स्लो। तो अब आइडेंटिफाई करते हैं कि नीट कैसे लिखेंगे। तो नीट का एन 7 होगा, ई है 5, ए 9 एंड टी इज 3, तो 7593 ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. A boy in a family says, I have twice as many sisters as I have brothers, but one of his sisters claims that she has the same number of brothers and sisters. The number of girls and boys in that family are respectively dash. तो गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं, ये आइडेंटिफाई करना हमें। तो बॉय सेज आई हैव ट्वाइस एज मेनी सिस्टर एज आई हैव ब्रदर्स। -1 करेंगे क्योंकि हिमसेल्फ होगा ये, तो वो काउंट नहीं होगा। तो गर्ल्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय बी, -1 करेंगे क्योंकि वो -1 क्यों? क्योंकि ये जो बॉय जो बोल रहा है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रदर्स में वो काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट, वन ऑफ हिज सिस्टर सेज, तो सिस्टर क्या बोलती है कि शी हैज द सेम नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो बी इक्वल्स टू जी
-1 होगा क्योंकि ये होगा हर सेल्फ। तो ये क्या बन जाएगा, G इक्वल्स टू B+1 बन जाएगा। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, अभी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 इंटू B-1 इक्वल्स टू B+1, करेक्ट। हाँ, तो 2B-2 इक्वल्स टू B+1। तो अब B को पहले ट्रांसफर करते हैं, 2B माइनस B इक्वल्स टू 1, ये -2 बन जाएगा +2, तो 2B माइनस B, B इक्वल्स टू 1 + 2 3। सो बॉयज आर 3, नाउ गर्ल्स कितने होंगे, तो ये जो फॉर्मेट है G इक्वल्स टू B+1 है और B हमें पता है 3, सो 3 + 1 इक्वल्स टू 4, सो 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। पहले गर्ल्स पूछा है तो 4 गर्ल्स, बॉयज 3, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 4 girls and 3 boys. Done. Question number 12. 15 distinct points are randomly placed on the circumference of a circle. At most, how many triangles can be formed using these points? तो हमें आइडेंटिफाई करना है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो 15 multiplied by 14 multiplied by 13 divided by 3/2/1 equals to 15 into 14 into 13, 2730 divided by 6, 455. The correct answer is option 2. Next, question number 13. 5 girls are standing in a line. Out of them, Hannah is to the left of Agatha. So 5 girls, 1, 2, 3, 4, 5 girls are standing in a line, straight line. Out of them, Hannah is to the left of Agatha. मतलब left, Agatha right में होगी, Hannah left में होगी. Between Agatha and Dipti, there are 3 places. तो Agatha और दीप्ति के बीच में 3 प्लेस है, जिसमें से Hannah एक जगह पे, तो सेकेंड और थर्ड प्लेस पे ये होगी, तो दीप्ति लास्ट में. Shabnam has both Shabnam has both Lata and Dipti as neighbor. तो शबनम मिडिल में होगी, तब लता और दीप्ति आजू बाजू में होंगे. तो देन लता इज टू द राइट ऑफ अगाथा, नो. हैना इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, नो. देर आर एग्जैक्टली 2 प्लेस बिटवीन हैना एंड दीप्ति, yes, 2 प्लेस है बिटवीन हैना एंड दीप्ति. एंड देर इज एग्जैक्टली 1 प्लेस बिटवीन शबनम एंड Agatha. No, 2 places. तो option 3 is correct answer. There are exactly 2 places between Hannah and Dipti. तो शबनम एंड लता का 2 प्लेस है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. Question number 14. If you add liquid soap in the center of bowl of water which has black paper flakes floating in it, the paper flakes will start dissolving, move away from the center, settle down, or not move. So soap reduces surface tension when it touches water, and surrounding water still has higher surface tension. So it pulls the surface layer outside. So जिसकी वजह से paper flakes will move away from the center. The correct answer is option 2. Question number 15. A 6-digit security code is made using digit from 0 to 9. The first and last digit are known. If the remaining 4 digits are known to be primes, means 2, 3, 5, 7 हो सकते हैं. At the most, how many trials are required to determine the code? तो 4 choices per position होंगे, जिसकी वजह से 4 का पावर 4 होगा, which is 4 into 4 into 4 into 4. 256 is correct answer. Option 3. क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6 डिजिट सिक्योरिटी कोड है,
उसमें से फर्स्ट और लास्ट डिजिट पता है, बाकी के 4 डिजिट नहीं पता है, विच कैन बी प्राइम्स। तो 2, 3, 5, 7 हो सकते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है 0 to 9 के बीच में ही। तो 5 प्राइम नंबर्स और 4 प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, जिसका हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है और आइडेंटिफाई करना है। 4 स्क्वायर कितना होगा, 4 का पावर 4 कितना होगा, 256 होगा, विच इज ऑप्शन 3। Question number 16. The sum of digits of 4-digit number ABCD is subtracted from the number sum of digits of 4-digit number A plus B plus C plus D. ये sum हो गया, तो n equals to thousands place contribute A, फिर hundreds place contribute B, tens place contribute C and ones place contribute D. अभी हमें क्या करना है, 4-digit number ABCD is subtracted from the number, तो n इक्वल्स टू 1000 A में से A माइनस किया तो मिलेगा 999 A, 100 B माइनस B इक्वल्स टू 99 B, 10 C माइनस C इक्वल्स टू 9 C एंड 1 D माइनस D इक्वल्स टू 0। तो क्या बनेगा, 999 A प्लस 99 B प्लस 9 C, तो हम 9 कॉमन सेपरेट कर लेते हैं, तो 111 A प्लस 11 B प्लस 1 C, या सिर्फ C लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 9 is common, तो option 1 is correct answer. Question number 17. A fair coin is tossed 2 times independently. X denotes the number of heads. Then the fair 6-faced die is thrown at random independently of the tosses, and Y denotes the number on the top of the die. What is the probability that the value of X plus Y is 4? तो सबसे पहले तो X represents heads, पर y tails represent नहीं करता है। क्या बोला है, y denotes the number on the top of the die, means anything that comes on the top of the die. It can be heads or tail, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। क्लियर? तो if a fair coin is tossed twice, there is a probability that heads means x, एक भी बार नहीं आया, दोनों बार tails आए, तो probability of x equals to 0 is 1/4। हो सकता है कि हेड्स एक बार आया, टेल एक बार आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू 1 इज हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 मीन्स दोनों बार हेड्स आए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है 1/4। क्लियर? बट वी वांट x प्लस y इज 4, सो फॉर ईच x y इक्वल्स टू कितना होगा, अगर x 0 है तो y 4, x 1 है तो y 3 एंड x 2 है तो y 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 4 इज 1/6, y इक्वल्स टू 3 भी 1/6 एंड y इक्वल्स टू 2 भी 1/6 होगा, क्योंकि नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाई इज 1/6 ओनली। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें कितनी मिलेगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज 4? तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये मल्टीप्लाई बाय 1/6, 1/4 इंटू 1/6 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो ये कितना मिलेगा, इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि ये हाफ है तो इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 24, तो कितना होगा, यहाँ पे दिया है 6, 1 divided by 6, तो option 4 is correct answer, C. Question number 18. A cylinder has two concentric identical metal plates placed on each other that have identical circular holes as shown in the figure, that is shaded area, ये वाला part.
और कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग होता है हैविंग द सेम सेंटर. द प्लेट ए रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट 15 डिग्री पर सेकेंड. द प्लेट बी रोटेट्स इन एंटी clockwise direction at 5 degree per second. If the starting position of the plate as seen from the top of the cylinder are shown as below, like this. The first instance when both the shaded region completely coincide happens at कितना टाइम वो पूछा है. तो सबसे पहले तो इफ द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द प्लेट्स डिस्टेंस कितना वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो ए ये वाला जो प्लेट है वो और बी वाला प्लेट है वो कितना अपार्ट है फ्रॉम ईच अदर. सो सबसे पहले तो ये वाला एरिया होगा 180 डिग्री. ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस ये वाला पार्ट है 90 डिग्री पर ये सेंटर में मीन्स 90 का हाफ 45 डिग्री. तो 180 माइनस 45 डिग्री 135 डिग्री होगा. और जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मीन्स एक क्लॉकवाइज और एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दोनों की टोटल स्पीड एक दूसरे के सामने किस स्पीड से आ रहे हैं. 15 प्लस 5 दैट इज 25 डिग्री पर सेकेंड की स्पीड से आ रहे. समझा. तो 135 डिग्री डिवाइडेड बाय 20 डिग्री कितना मिलेगा. 135 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 6.75 सेकेंड्स लगेंगे कोइंसाइड होने के लिए. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 6.75 seconds. Question number 19. The geometric mean of square of two positive integer is 10. तो geometric mean of two positive integer means 1, 2, 3 is 10. Geometric mean of square of two positive integer means हमें पूछा है कि geometric mean का सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. अब स्क्वायर पूछा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 है. तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कितना होगा. तो अगर हम पहले स्क्वायर रूट को हटा देते तो स्क्वायर भी हट जाएगा. ए बी इक्वल्स टू 10 और 10 आने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. 1 इंटू 10 आ सकता है, 5 इंटू 2 आ सकता है, 2 इंटू 5 आ सकता है और 10 इंटू 1 आ सकता है. तो ये होगा 11. सम पूछा है ना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दी टू इंटीजर. तो ये दोनों होगा 11, फिर ये 7, 7, 11. तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 7. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. Last question, question number 20. An item in the shop is priced at 375 rupees excluding tax. Market price is 375 rupees excluding tax means इसमें tax ऐड करना बाकी है. The shopkeeper offers discount of 15%. डिस्काउंट भी मिलेगा 15% का. However, there is a tax at the rate 12% बिफोर डिस्काउंट. मतलब डिस्काउंट से पहले वो टैक्स लगने वाला है और डिस्काउंट माइनस होता है. द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज डैश. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा. तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते. मार्केट प्राइस इज 375 रुपीज. टैक्स 12% ऐड होगा ऑन मार्केट प्राइस बट बिफोर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट, बिफोर अलाउइंग डिस्काउंट. और डिस्काउंट का रेट है 15%. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 375 में टैक्स ऐड होता है, 12% ऐड होगा तो मिलेगा 420 रुपीज. इसमें से माइनस करेंगे 15% डिस्काउंट तो मिलेगा 357 रुपीज. तो सेलिंग प्राइस इज 357. ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर. क्लियर. हियर वी हैव कंप्लीटेड लाइफ साइंस का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो जनरल पेपर को बिलोंग करता है. लाइफ साइंस का वो एग्जाम जो मार्च 2025 में पूछा गया था स्लॉट 1 में. नेक्स्ट सेशन में हम स्लॉट 2 का लाइफ साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे. हैप्पी लर्निंग. बाय.